हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉलरॉच लॉ पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। टुडेस टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। तो जनरली जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज chemical reactions in which oxidation and reduction both takes place simultaneously. So all the chemical reactions in which oxidation and reduction both takes place simultaneously are the examples of redox reactions. There are two types of. First one is direct redox reaction, other is indirect redox reactions. The first one is direct redox reaction. Direct redox reactions. Direct redox reaction. Direct redox reactions are those that takes place in a single container. I mean to say, redox reactions means oxidation and reduction both takes place simultaneously. If the oxidation and reduction both takes place simultaneously but in a single container, in the same container, this one is called direct redox reactions. Examples of direct redox reactions is, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जिंक रॉड को इमर्ज्ड कर दिया। ये जिंक रॉड है, जिंक रॉड, ठीक है। तो जब आप जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने जैसा ही डिप किया, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शंस होगा क्या कि जिंक क्या होंगे, Zn लूज 2 electrons and convert into zinc ions and goes into the solution, ठीक है। और आफ्टर गोइंग zinc ion into the solution it forms zinc sulfate and these 2 electrons gain copper ions which are present in aqueous solution, gain 2 electrons which is used by zinc metal and it convert into copper and settle down in the bottom of container or get precipitated. So now in this reaction we see at first zinc lose electrons, so or we all know that the loss of electron is called oxidation and the gain of electron is called reduction. I mean to say that the oxidation and reduction both takes place in a single container, and the reactions in which oxidation and reduction both takes place simultaneously called redox reaction. But here when zinc rod is dipped into immersed into copper sulfate solution, oxidation and reduction both takes place in a single container, so this one is an example of direct redox reactions. So this one is the examples of direct redox reactions. Next, other type of redox reaction is indirect redox reaction. Indirect redox reaction. Those redox reactions in which oxidation and reduction both takes place in a two separate container. In direct redox reactions, oxidation and reduction
both takes place both takes place simultaneously in two different container two different container. Such type of redox reactions are called indirect redox reactions. The suitable examples of indirect redox reactions are galvanic cell. Examples of such type of reactions are galvanic cells, galvanic cell, electrochemical cell, electrochemical cell are the examples of indirect redox reactions. Now we consider all the electrochemical cell in detail now. Electrochemical cell, it has two containers. In one container this one is zinc rod, immerse into zinc sulfate solution, and this one is copper rod, immersed into copper sulfate solution. In zinc sulfate solution, zinc is present in the form of ions, zinc ions and sulfate ions. In copper sulfate solution, copper and sulfate both are present in ionic form, in copper ions and sulfate ions. These two electrodes is joined by a key and a voltmeter through the wire. This two different container is joined with each other through the U-shaped tube. This one is U-shaped tube in which gel of a strong electrolyte is filled. This one is the gel of inert a strong electrolyte. So inert a strong electrolytes examples are KCl, KNO3, etc. These are the inert a strong electrolytes. Since this one is U-shaped tube filled with a strong electrolyte, okay. So this one, or a strong electrolyte, this one is the salt. So this U-shaped tube is called salt bridge. Bridge because these two separate container is joined with this U-shaped tube. So in between these two separate container, this U-shaped tube filled with a salt of a strong electrolyte, we have as a bridge in between these two container. So this one is called salt bridge. Salt bridge. Salt bridge. तो ये हो गया इसके कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या होगा, फिर से सुनिए. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा. इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल.
in here are two containers. In one container, zinc rod is immersed into zinc sulfate solution, while in other container, copper rod is immersed into copper sulfate solution. These two container is joined by a U-shaped tube filled with a strong electrolyte or its salt. So this U-shaped tube is called salt bridge. These two electrodes are joined to each other through the wire and a key and bolt meter. Now we consider on a function of this electrochemical cell. Now key is on. जब हम आप लोग की को ऑन करते हैं तो यह जिंक यह कॉपर रॉड दोनों ही इलेक्ट्रोड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इससे, तो सबसे पहले ये ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करते हैं, जिंक लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स -2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस, और ये जिंक आयंस में कन्वर्ट हो गया और चले गए ये सॉल्यूशन में। कहाँ चले गए, सॉल्यूशन में। जिंक आयन क्या है, पॉजिटिव, तो जिंक आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन। अब जिंक आयन सॉल्यूशन में चले गए तो यहाँ पर क्या थे, इस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक और सल्फेट आयन सेम थे। अब जिंक आयन यहाँ बढ़ गए तो ग्रेजुअली द नंबर ऑफ जिंक आयंस इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। आई पॉजिटिव चार्ज किसके, जिंक आयंस का। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स दो लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से थ्रू द वायर होते हुए ये वोल्ट मीटर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं और इसे कैथोड कहते हैं, कैथोड। अब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए कहाँ आ रहा है, कैथोड। मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द वायर। अब ये जो वायर है वो बाहर में है, तो दिस वन इज कॉल्ड आउटर सर्किट, दिस वन इज कॉल्ड आउटर सर्किट, आउटर सर्किट। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है ओवर थ्रू द आउटर सर्किट्स फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द आउटर सर्किट्स। नेक्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो नाउ इन दिस सॉल्यूशन कॉपर एंड सल्फेट आयंस आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। सो कॉपर आयंस, वह इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से फ्लो होकर आया उस इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर आयन जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो गेन कर लिए, और कॉपर आयन गेन करके इसमें धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर कॉपर आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं इसके सरफेस पे, यानी क्या है, ये कॉपर है, Cu डिपॉजिट, डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ Cu डिपॉजिट हो रहे हैं और ये धीरे धीरे ये जो जिंक मेटल है वो धीरे धीरे वो यहाँ से डिजॉल्व हो रहा है इसके साथ, धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे डिजॉल्व होता जा रहा है और ये यहाँ पर कॉपर मेटल डिपॉजिट होता चला जा रहा है। अब देखिए इस सॉल्यूशंस में कॉपर आयंस थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये कॉपर आयंस क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसमें डिपॉजिट हो रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ कॉपर आयन और सल्फेट आयन दोनों तो सेम थे, अब इसमें कॉपर आयन यहाँ धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कॉपर आयन ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और सल्फेट आयन इंक्रीज होना स्टार्ट कर हो जाएंगे, जिसके कारण इसके चारों ओर
सल्फेट आयन का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दिखाई देगा इसके चारों ओर सल्फेट आयन ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये सल्फेट आयन्स है, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फेट आयन्स यहाँ पर हो रहा। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है वो जिंक आयन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ जिंक आयन्स, यहाँ जिंक आयन का एक्यूमुलेशन हो रहा और यहाँ सल्फेट आयन का एक्यूमुलेशन हो रहा। अब क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, यहाँ इस सॉल्यूशंस में जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके यहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ समय के बाद जब यहाँ निगेटिव सल्फेट आयन का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये भेजता है यहाँ से, लेकिन अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आए 2 इलेक्ट्रॉन, अभी हम मान लेते हैं कोई कॉपर आयन से, अब इनको इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इसके कांटेक्ट में आना होगा, लेकिन ये यहाँ दोनों के बीच की काफी डिस्टेंस है, क्योंकि इसके चारों ओर जो है सल्फेट आयन जगह को घेर रखा है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये गेन नहीं कर पाता है। नहीं कर पाने के कारण अब यहाँ से ये जो है जिंक फिर इलेक्ट्रॉन्स को सेंड करना बंद कर देता है, तो फिर यहाँ से पता था ये वोल्ट मीटर कि अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट स्टॉप हो जाता है। तो जब ये करंट स्टॉप हो जाता है तो ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या जिंक आयन और सल्फेट आयन, ये दोनों को ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यदि KCl का ये सॉल्ट ब्रिज में है, तो इसको न्यूट्रलाइज Cl माइनस कर सकता है, तो Cl माइनस यहाँ से बाहर आता है और यहाँ से K प्लस बाहर आता है और ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, तो इसको भी न्यूट्रलाइज कर रहा, इसको भी न्यूट्रलाइज कर रहा, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स को भेजना स्टार्ट कर देता है और इस तरह से ये काम करता है। और इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy. I mean to say the electrochemical cell or indirect redox reactions का एग्जाम्पल हो गए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device that convert chemical energy into electrical energy. नेक्स्ट ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट electrons flow from anode to cathode through the outer circuit Third, ions are flow through the inner circuit. Fourth, function of salt breeze is that it maintain the electrical neutrality through the movement of
movement of ions, ठीक है, through the movement of ions without mixing of the two solution, without mixing the two solutions. So in this way, galvanic cell or electrochemical cell generates electrical energy with the help of chemical energy. So we can see that electrochemical cell is a device that converts chemical energy into electrical energy. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, और इसमें क्या होते हैं कि दो हाफ सेल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन टू सेपरेट कंटेनर. अब देखिए इससे ये पता चलता है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल oxidation and reduction both takes place in two separate container, but at zinc electrode oxidation takes place, or at copper electrode reduction takes place, because gain of electron is called reduction and loss of electron is called oxidation. So now see, in this way we can say that oxidation and reduction both takes place in a two separate container, correct? अब आप लोग यहाँ देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक मेटल एनोड का बिहेव करता है और कॉपर स्ट्रिप कैथोड के जैसा बिहेव करता है. और इस कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, कॉपर आयंस गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयंस, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन and loss of electron is called oxidation. So oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode, right? तो यहाँ से हम लोग और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे.